Anokhe Rang Maestro is a scientist, a poet, a vocalist, but little did I know that he even mastered the techniques of Gita. I'm totally impressed by this gentleman. Let's share that impressive moment with you now, and that is with the maestro of Anokhe Rang, Dr. Krishan Chabra. Hello, I'm Dr. Krishan Chabra and welcome to Anokhe Rang. As we know, Srimad Bhagavad Gita, also known as the Song Divine, goes way back in time when in the battlefield of Kurukshetra, the supreme archer Arjun, seeing his own relatives and loved ones in the opposing army, laid down his arms and refused to fight. Then Lord Krishna, who was there as Arjun's charioteer, gave him an eloquent sermon. Lord Krishna touched on many aspects of life and the significance of one's role. For example, to perform one's duty without expectations of the outcome, action of karma without attachment, materialistic desires being the root cause of problems, controlling the mind, the immortality of the soul, and the list of gems of wisdom goes on and on. The Bhagavad Gita, written in Sanskrit, consists of 18 chapters and 700 shlokas. There are countless books and scholarly translations about the meaning and teachings of Gita. This is my humble presentation in that I have tried to pick the shlokas that are more relevant and applicable to the teachings for a noble and blessed life, and then to take the meaning in Hindi and to restructure it into rhyming verses. Since Gita is a sermon by Lord Krishna, the reference to the word I in the presentation refers to Lord Krishna himself. This presentation is titled Gita ka Sar Kya Hai, Jeevan ka Raz Kya Hai. I would like to dedicate this presentation to my eldest brother, Shri Jagdish Chandra Chabra, whose deep love and immense knowledge of Bhagavad Gita is simply amazing. And he has been a great inspiration in my life ever since I was growing up. And now, going to be with me on tabla, Mr. Sunny Masih, who is a disciple of Harun Alam. And Mr. Alam is a shagird of the world maestro tabla player Ustad Tariq Khan. Gita ka sar kya hai, jeevan ka raz kya hai? गीता का सार क्या है, जीवन का राज क्या है? जो जन्मा है जहाँ में उसका मरना है निश्चित। जब ये बात सच्ची तो फिर तुम क्यों हो चिंतित? जन्म से मृत्यु होती, मृत्यु पर होता जन्म, ये चक्कर है सदा से, नहीं ये शोक का कारण। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है, कदापि ये न मरती, पुराना शरीर त्यागे नए में वास करती। जैसे तुम पुराने वस्त्रों का त्याग करते और फिर नए वस्त्रों को तुम हो ग्रहण करते। कर्म तुम करते जाओ, फल की चिंता न करना, कर्म तुम करते जाओ, फल की चिंता न करना। फल तेरे हाथ नहीं, इस बात को समझना। चारों ओर कैसे कछुए के फैले अंग, कैसे उनको समेटे सब रह जाते दंग। तुम भी विषयों से ऐसे इंद्रियों को हटाओ, स्थिर बुद्धि बनो तुम, जीवन में शांति पाओ। इच्छा दुखों की जड़ है, इच्छा दुखों की जड़ है, इस बात को समझना। इच्छा पर पाना काबू, पूरी तुम कोशिश करना। पानी में नाव जैसे आंधी उसको डुबो दे, वैसे ही इंद्रियों में मन बुद्धि को डगमगा दे, बुद्धि को डगमगा दे। गीता का सार, जीवन का राज। गीता का सार, जीवन का राज।
बिना आसक्ति के तुम अपना कर्तव्य करना, परमात्मा को पाने के राज को तुम समझना। धुएं से ढकती अग्नि जेर से गर्भ ढकता, मैल दर्पण को ढकती काम से ज्ञान ढकता। इंद्रियां मन और बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि हैं काम के वासस्थान। ज्ञान को ढकता इनसे मोह का होता ध्यान। इंद्रियों को रखो काबू, बुद्धि से आत्मा जानो। मन को तुम वश में कर लो, काम का नाश कर दो। धर्म की हानि हो जब, अधर्म की वृद्धि हो जब, साकार रूप में मैं जन्म लेता हूँ तब तक। साधु उद्धार हेतु, पापी के नाश हेतु, युग युग में जन्मा हूँ मैं धर्म स्थापना के हेतु। दहकती अग्नि जैसे, दहकती अग्नि जैसे ईंधन को भस्म करती, ज्ञान की अग्नि वैसे कर्म को भस्म करती। कर्म निष्काम हो ये कर्म योगी के लक्षण, कर्म निष्काम हो ये कर्म योगी के लक्षण। कमल की जड़ में जैसे करना जीने का यतन। काम को जीता जिसने, क्रोध को जिसने हराया, वही योगी है सच्चा, उसी ने सुख है पाया, उसी ने सुख है पाया। गीता का सार जीवन का राज। गीता का सार जीवन का राज। मनवा इंद्रियों को जीते जीवात्मा मित्र है वो, मनवा इंद्रियां ना जीते जीवात्मा शत्रु है वो। जीवात्मा मित्र बने तुम्हारे हाथ में है, अपना उद्धार करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो योग को सिद्ध करना, अगर तुम चाहते हो योग को सिद्ध करना, यथा योग्य फिर तुम आहार विहार करना। कर्मों में प्रयत्न करो तुम यथा योग, शयन और जागरण भी करो तुम यथा योग। चित्त को वश में करके प्रभु में लीन हो जब, भोगों से परे वो योग युक्त होता वो तब। मन चंचल बहुत है वश में करना है मुश्किल, मन चंचल बहुत है वश में करना है निश्चित। प्रभु चिंतन के अभ्यास से ये होता मुमकिन। सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओम मैं हूँ। जो भी तुम सोच सकते सबका आधार मैं हूँ, जो भी तुम सोच सकते सबका आधार मैं हूँ। मेरा भक्त मुझको जैसे कैसे भी भजता, मेरा भक्त मुझको जैसे कैसे भी भजता। अंत में वह सदा ही मुझको प्राप्त होता, मुझको प्राप्त होता। गीता का सार जीवन का राज। गीता का सार जीवन का राज। एक चित्त मुझको सदा जो स्मरण करता, मुझ में वह लीन जोगी सहज ही मुझको पाता। ऐसे महात्मा का पुनर्जन्म न होता, जन्म मरण के चक्कर से वो है छूट जाता। तू अपने सब कर्मों को मुझे बस अर्पित कर दे, तू अपने सब कर्मों को मुझे बस अर्पित कर दे। ऐसी चित्त वाली धावना तू कर ले, कर्म बंधन से फिर तू मुक्त हो जाएगा और सदा के लिए मुझको प्राप्त होगा। सबके हृदय में स्थित सबकी आत्मा मैं हूँ, सबका आदि अंत और मध्य मैं हूँ। शस्त्रधारियों में राम, ज्योतियों में सूर्य हूँ मैं। जड़ हो या हो प्राणी सभी में उत्तम हूँ मैं। सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। सब जीवों के उत्पन्न होने का कारण मैं हूँ। जो मेरी योग शक्ति विभूति को समझता, जो मेरी योग शक्ति विभूति को समझता,
भक्ति योग से वह सहज ही मुझ में रमता, सहज भी मुझ में रमता। गीता का सार जीवन का राज, गीता का सार जीवन का राज। कैसे भक्त सुनो प्रभु को प्रिय होते, कैसे भक्त सुनो प्रभु को प्रिय होते। द्वेष भाव न हो स्वार्थ से रहित होते, लाभ हो या हो हानि, मान हो या अपमान, सुख हो या हो दुख, पर रहे एक समान। आकांक्षा से रहित हों, अभिमान के हों त्यागी, निष्काम कर्म करते और हों फल के त्यागी। सत्व राजस तामस, सत्व राजस तामस प्रकृति से हो उत्पन्न, जीवात्मा शरीर से बंधे तीन गुणों के कारण। सत्व गुण है निर्मल, सत्व गुण है निर्मल, ज्ञान व सुख से बांधे। आसक्ति से रजोगुण, आसक्ति से रजोगुण, कर्म के फल से बांधे। तमोगुण ज्ञान से उत्पन्न, तमोगुण ज्ञान से उत्पन्न, मोह का जाल डाले, प्रमाद और आलस में बस फांस डाले। सुख हो या हो दुख, मान हो या अपमान, कैसी भी हो स्थिति रहे जो एक समान। कर्तापन का जिसको बिल्कुल ना हो अभिमान, कर्तापन का जिसको बिल्कुल ना हो अभिमान, तीनों गुणों से ऊपर उठता है वो इंसान। योग भक्ति से जो फिर सदा ही मुझको भक्ता, ब्रह्म को पाने के योग्य वह हो जाता, योग्य वह हो जाता। गीता का सार जीवन का राज, गीता का सार जीवन का राज। लोभ काम क्रोध, लोभ काम क्रोध नरक के द्वार जैसे, करे जो त्याग उनका मुक्ति पाए उनसे। इनको त्यागने से कल्याण का मार्ग खुलता, परम गति को यानी मुझको वो है पाता। शास्त्र विधि जो त्यागे और मनमानी करता, ना वह परम गति ना वह सुख को पाता। क्या करना न करना, क्या करना न करना, शास्त्र क्या है कहते, कर्म बस करते जाओ शास्त्र जैसा है कहते। कर्म बस करते जाओ शास्त्र जैसा है कहते। सत्वराजस्व तामस, सत्वराजस्व तामस जैसे भी गुण हैं होते, उनके अनुसार ही श्रद्धा और यज्ञ भी होते। आहार दान तप भी तीन तरह के होते, गुणों की तरह ही अच्छे बुरे वो होते। ओम तत्सत, ओम तत्सत तीन प्रकार का नाम, वेदों का रचैया ब्रह्म है ये नाम। उत्तम काम व यज्ञ जब भी करना होता, इन शब्दों के उच्चारण से वह शुभ होता। श्रद्धा के बिना जो हवन तप दान करता, श्रद्धा के बिना जो हवन तप दान करता, असत उसको समझो कुछ भी ना लाभ होता, कुछ भी ना लाभ होता। गीता का सार जीवन का राज, गीता का सार जीवन का राज। सात्विक राजस तामस, सात्विक राजस तामस के लक्षण और भी हैं। त्याग ज्ञान कर्म कर्ता और बुद्धि में है। तृतीय और सुख भी तीन तरह के होते, अच्छे भी बुरे भी गुणों जैसे हैं होते। चाहे गुण रहित हो पर अपना धर्म है अच्छा, चाहे गुण रहित हो पर अपना धर्म है अच्छा। स्वभाव नियत कर्म करने से पाप न होता, चाहे जो दोष युक्त
न त्यागो सहज कर्म, कुछ ना कुछ दोष होता, चाहे हो कोई कर्म। जैसे अग्नि के संग थोड़ा धुआं भी उठता, वैसे ही हर कर्म में थोड़ा तो दोष होता। कर्म योगी सुनो जो मेरी शरण में आता, सब काम करते हुए भी परम पद को है पाता। सब कर्मों को मन से मुझे तू अर्पण कर दे, सब कर्मों को मन से मुझे तू अर्पण करते। एक चित्त होकर मुझी में ध्यान लगा ले, हर संकट से फिर तू पार हो जाएगा, और अंत में फिर मुझी को पा जाएगा। श्रद्धा युक्त जो भी गीता को पढ़ता सुनता, पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक पाता। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण होते, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण होते, और धनुर्धारी अर्जुन संग होते। विजय और विभूति वहाँ अवश्य होती, अचल नीति भी वहाँ अवश्य होती, वहाँ अवश्य होती। गीता का सार जीवन का राज, गीता का सार गीत का राज। गीता का सार क्या है, जीवन का राज क्या है, गीता का सार क्या है, जीवन का राज क्या है। गीता का सार यही है, जीवन का राज यही है, गीता का सार यही है, गीता का राज यही है। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैंने मंदिर में एक महात्मा जी से गीता का प्रवचन सुना। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश 2 शब्दों में कहा जा सकता है। सबसे पहला शब्द गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द अर्थात धर्म, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, और दूसरा शब्द गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द अर्थात मम, ध्रुवा नीतिमति मम से। तो धर्म मम अर्थात धर्म ही मेरा है। कितने सुंदर ढंग से उन्होंने गीता का संदेश बताया। आशा है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो अगले महीने के पहले रविवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।